India and Vietnam. Today, I, Neha Tyagi, welcome you all on the behalf of India Book of Records. Welcome you all here for the press conference for postal launch of world's first Indo-Vietnam cultural heritage film. It is with immense pride and heartful joy that we gather here today at the historic Constitution Club of India to mark the milestone in global cultural unity. The announcement of the world's first international featured film dedicated to Indo-Vietnam cultural heritage, One Thing You, Prem Ki Surdhara. This is extraordinary project championed by the India Book of Records is more than just cinema. Now, I would like to request Mrs. Neerja Roy Chaudhary, the Managing Editor of India Book of Records, to kindly come and honor all of our guests. Ma'am, please. All of you, please put your hands together for him. Dr. Maruti, Chairman of Diplomatic Club. Dr. Vipin Kumar, President of Hindi Parishad. We welcome you, sir. Mr. Troy Quang Hay. Dr. Madan Mohan Sethi, Council, Journal of India. Can we have you here, sir? Mr. Sudhanshu Mittal, Head CEO, Gurugram and Director Technical Solutions. Dr. Pradeep, Dr. Praveen Kumar. We welcome you here, sir. Next we have Professor Dr. Artist Chu Pai Q. Ma'am, you need to come to the stage. Dr. Nguyen Hong Eng, Julia Ma'am. Our artist Gopi Krishna Burman. We welcome you, sir, here. This is Kishori Shani Vech. We welcome you, ma'am.
All of you, please put your hands together for her. Ms. Suchita Kulkarni. Mr. Vimal Mishra. Mr. Vishwadeep Roy Chaudhary. Thank you so much, ma'am. We welcome you all here. Now, I request our esteemed dignitaries to initiate the poster launch ceremony. I would like to request Neerja ma'am to give 200 years old for Mandan to Professor Chu Bai Kyu for the inauguration. Neerja ma'am. Yes. Great. Rest of you, please unribbon the folder in front of you and just please carry that. I request everyone on the stage to kindly open the folders. Yes. Yes, सामने. Thank you so much, everyone. Now, I would like to request Ms. Neerja Roy Chaudhary to please come here and please tell something about the movie. Neerja ma'am. Project, a film to celebrate the bond, the cultural bond between India and Vietnam. And this movie will be shot against various locations in India and Vietnam, and it is expected to be released by February next year in theaters and on an OTT platform in India and Vietnam. So this film is even more special to us because it will serve as a platform for our talented record holders. So many of them have exceptional skills and passion for art. And one of them is
our very own Gopi Krishnan Verma, who is remarkably known for his performance in the movie Sitare Zameen Par. But let me remind you, before the world recognized him, India Book of Record honored him in 2021 for being the first actor with Down syndrome, and his record was published in 2022 edition. Let me show you the edition. This is the edition. Here is the record of Gopi Krishnan Verma. So, we hope this movie will strengthen the bond between India and Vietnam more. This is the effort of India Book of Records and Vietnam Records Organization. And now, for further details, I hand over the mic to Professor Chu Bao Q, a Vietnamese folk artist. Sir. Tôi từ Việt Nam sang, tôi thay mặt những người nghệ sĩ về dân ca dân gian của chúng tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ và kỷ lục của Ấn Độ và tất cả các quan khách đã có mặt và đại sứ quán của Việt Nam chúng tôi cũng có mặt ngày hôm nay và tất cả hãng phim rồi cũng như báo đài đưa tin điện tử chúng tôi những tình cảm của quê hương Việt Nam tôi dành cho những tình cảm để lời chào trân trọng nhất với các đồng chí. Ladies and gentlemen, on behalf of Vietnam delegation, I really want to say thank you for all the VIP guests, all the media, all the people, and especially the Vietnamese ambassador to be here today. From the bottom of my heart, I want to say thank you for all. Và cuộc đời của tôi là một nghệ sĩ dân gian bảo tồn văn hóa dân tộc cho quê hương chúng tôi, để đại diện cho quê hương đất nước Việt Nam chúng tôi. Yeah, I am a Vietnamese folk artist. So all of my life, I just have one mission that I want to protect and safeguard the Vietnam heritage through quan họ. Tôi rất cảm ơn Dr. Bi và kỷ lục của Ấn Độ đã mời tôi tham gia trong bộ phim này, cũng như là trong tiểu sử về cuộc đời của tôi là một nghệ sĩ dân gian của Việt Nam. Yeah, I want to say especially thank you for Dr. Vishwarup and India Book of Records who can recognize this, and through the book of my life that Guardian Heritage, and now through the movie, I once again the culture of between India and Vietnam. Tôi cũng rất muốn trong bộ phim giữa đất nước Việt Nam của tôi và Ấn Độ để hiểu hơn được cái tình đoàn kết giữa hai đất nước, cũng như cái sự kết nối về văn hóa giữa hai quốc gia và thế giới hiểu hơn cho hai đất nước Việt Nam của tôi và đất nước Ấn Độ. And through this movie, I hope the relationship between India and Vietnam, and especially the heritage of Vietnam and India, also can be a stronger relationship. Tôi không biết nói gì và tôi cảm ơn tất cả các quý vị có mặt, quan khách của ngày hôm nay và báo chí truyền hình, và cảm ơn ekip đạo diễn, nhà biên kịch, cũng các diễn viên cùng tham gia bộ phim Vườn Tình Yêu.
Tôi xin cảm ơn chân thành. Once again, I want to say thank you for all of you to be here, and especially I want to say thank you for the director, the movie team, actor, actress. So to the Vương Tình Yêu, I really want to say thank you for all. Thank you. So good afternoon, बोली देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो यहाँ पे आए हैं। Everybody from media, all the dignitaries. With immense gratitude in my heart, I just want to say दिल से बहुत ज़्यादा thank you. And this film is extremely special for a lot of reasons and for a lot of firsts. बहुत प्यारी मूवी है, मैं इतना अभी ऑलरेडी आपको बता सकती हूँ। वो एक जो फीलिंग होता है ना बहुत दिनों बाद जब हम घर लौटते हैं, तो जब घर में माँ के हाथ का एक दाल चावल खाने में जो मज़ा आता है, या किसी बारिश वाले दिन एक अच्छी सी हॉट चॉकलेट पी के जो एक सुकून मिलता है, ये कहानी कुछ वैसी है। तो जैसे आज आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, आपका वक्त दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ that the day when our film is released, you all give us a lot of love and shower us with a lot of blessings. And thank you once again. Thank you so much, ma'am. I would like to request Kishori ma'am. Ciao Bui Song, respectable dais, Professor Dr. Chubao Pyu, IBRK, Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary ji, Julia, यहाँ पे उपस्थित सभी ऑनररी गेस्ट, विमल मिश्रा जी, विश्वदीप जी, and our actors, Sanchita is here, Gopi Krishna ji is here. हमारे जो वियतनामीज एक्टर्स हैं उनका भी स्वागत, एंड जो हमारे एम्बेसडर्स हैं एम्बेसी से हैं उनका भी स्वागत। मेरा बेटा भी यहाँ आया हुआ है, बॉबी विच, जो जानते राम सुपर हिट फिल्म थी उसका सीक्वल बन रहा है, तो जो पार्ट जो जानते राम जो कि हीरो हैं बॉबी विच वो भी आए हैं, अपनी माँ को सपोर्ट करने आए हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनने जा रही है इंडिया और वियतनाम के कल्चर को जोड़ने के लिए। और जैसे कि हम देसी भारतीय जो लोग होते हैं सभी को प्यार से वेलकम करते हैं, तो इस कल्चर को भी बहुत प्यार से वेलकम कर रहे हैं। और ये एक वन ऑफ इट्स काइंड इंडो वियतनामीज फिल्म बनने जा रही है। हमारा जो नाम है ब्योन तीन यो, इसका मतलब है प्रेम की सुरधारा। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, सोशल वर्कर का रोल कर रही हूँ इसमें। और ये जो गार्डियन ऑफ हेरिटेज, ये जो किताब छपी है BRC जी ने डॉक्टर चुबाओ के जीवन पर, तो उसी से ये प्रेरित है। और मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया पत्रकार हमारे मित्र हैं, इस फिल्म को बहुत सपोर्ट कीजिए। और बहुत जल्द ये 14 फरवरी को रिलीज है, तो इसका शूटिंग भी होने वाला है, इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस्ड है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। वैसे आप भी हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय वियतनाम। Thank you so much, Kishori ma'am, and we all I have for the support of you. I would like to request Gopi also to say a few words on this. Hello. Hi, I am Gopi Krishna Verma. I am happy Dr. Chubao sir, so super nice. My India crowd feeling surprise. Thank you so much. आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुदीप राय चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस फिल्म के पोस्टर रिलीज पे। इस फिल्म का टाइटल है वन तेन याओ, प्रेम की सुरधारा। और भारतीय सिनेमा में पहली बार एक ऐसी कोशिश की जा रही है
जो इससे पहले कल्पनाओं से भी परे था। और पहली बार हम वियतनाम के संस्कृति को भारतीय पर्दे पर बिल्कुल भारतीय अंदाज में आपके समक्ष पेश करेंगे। और जब ये फिल्म रिलीज होगी यानी 14 फरवरी अगले साल यानी वैलेंटाइन डे में, तो आप लोगों को बहुत सारा सरप्राइज मिलेगा। और ये सरप्राइज इसलिए मिलेगा क्योंकि इस फिल्म के पीछे दो व्यक्ति की प्रेरणा है, जिसका गौरवपूर्वक और आदरपूर्वक मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर चू बॉ क्यू सर का, जो वियतनाम के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय फोक आर्टिस्ट हैं। और मैं जब वियतनाम में था तो मैंने इनके कला को और इनके लोक संस्कृति को बहुत करीब से देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि इसे भारतीय सिनेमा का क्यों ना लाया जाए। और इस भावना के पीछे एक और वजह थी, वो थे डॉक्टर विश्वरूप सर, जिन्होंने 14 फेब को यानी इसी साल को प्रोफेसर चू बॉ क्यू के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी। और उसी बायोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर मैंने और मेरी टीम यानी विमल मिश्रा और संचिता कुलकर्णी और किशोरी मैम ने ये सोचा क्यों ना एक बहुत प्यारी सी फिल्म आपके समक्ष लाए, जो जीवन को एक अलग मायने दे, जो संस्कृति को एक अलग मायने दे, और एक ऐसी फिल्म आपके समक्ष आ सके जो पूरे परिवार के साथ आप देख पाए और पूरे परिवार के साथ इस मनोरंजन का हिस्सा हो पाए। कहानी को अभी मैं नहीं आपके आगे ओपन कर सकता हूँ, बट मैं ये वादा करता हूँ कि जब अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी तो ये एक उदाहरण न केवल आपके आगे पेश करेगा, बल्कि ये एक माइलस्टोन भी बनेगा भारतीय सिनेमा में। और इसके बाद जब भी वियतनाम कल्चर का जिक्र होगा तो इस फिल्म का जिक्र होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ये फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा है। मैं विगत 10 वर्षों से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ रहा हूँ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जितने भी अनूठे टैलेंट्स हैं उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चिन्हित भी करता है, उन्हें प्रतिष्ठित भी करता है, उन्हें स्थापित भी करता है और उन्हें मौका देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। और इसी वजह से आज हमारे बीच में गोपी कृष्णन भी है, जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल भूमिका निभाई है। और मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा, ये तो गेस करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कॉमेडी में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब उनका रोल इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप बहुत गुदगुदाएंगे भी, आपको बहुत मजा भी आएगा और इसे आप जीवन भर याद भी रखेंगे। गोपी आज हमारे बीच में है, इसलिए गोपी को बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं निर्जा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि निर्जा मैम ने जो है ये मौका आज हमें दिया है कि हम इस फिल्म को बना सके। थैंक यू मैम। और मैं जूलिया मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और उनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब वियतनाम में था तो हमारे इस कल्चर को समझने के लिए जो इनका कल्चर था और जो हमारा कल्चर था उसको साझा मंच दिलाने में जूलिया मैम का भी बहुत सहयोग रहा। तो मैं दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ही अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसे आपके आगे रखूंगा। धन्यवाद। लेकिन इसको वियतनामीज में डब करके वियतनाम में दिखाया जाएगा। नेशनल कॉज के लिए ही आप इसे मान सकते हैं। मित्रता की जो भावना रखी है इस फिल्म में, तो नेशनल कॉज के लिए आप इसे मान सकते हैं। मित्रता की भावना रखी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी व्यूइंग कर दी गई है, जो इंटरेस्टिंग रहेगी वियतनामीज ऑडियंस के लिए भी एंड इंडियन ऑडियंस के लिए भी। यहाँ पे हम हिंदी में बनाएंगे, यहाँ पे हम इंडिया में शूटिंग करेंगे और कुछ हिस्सा उसका वियतनाम में भी शूटिंग होने वाला है और डॉक्टर भी उसमें स्टारिंग करने वाले हैं। मेरा सवाल है कि इंडिया और वियतनाम में कौन देखिए ऐसा है कि ये तो आप बोल रहे हैं, जब विमल आप जवाब देना। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी, टाइटल ही प्रेम की सूत्रधारा है ना, तो वैसा है, प्रेम ही प्रेम है, तो अच्छा ट्रैक रहेगा ना।
संजीदा मैम, आपकी स्माइल एक अलग नजर आ रही है, जो पोस्टर देखते हैं दुल्हन के रूप में आप कह सकते हैं नजर आ रही है, समझ नहीं आ रहा है तो किस तरह का आपका किरदार है इस मूवी के अंदर, और आपकी न्यू एंट्री हमारी नई एक्टर बॉलीवुड में देखी जा रही है, कितनी आपको नर्वसनेस है और कितनी एक्साइटमेंट है कि आने वाले फ्यूचर में? सबसे पहले नमस्ते। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे वन बाय वन। पहले बताइए, दोनों स्माइल अच्छी, दोनों में अच्छी लग रही हो ना? ये भी लुक वो भी, तो बस वो एक अच्छा मुझे चाहिए था कि यहाँ पे कुछ एक अलग लुक, यहाँ अलग। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उससे ज़्यादा खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है। आजकल ऐसी स्क्रिप्ट्स भी बहुत कम बनती है जहाँ पे बिल्कुल परिवार के साथ बैठ के, जैसे मैंने कहा, एक बहुत प्यारी फिल्म बन रही है। तो किरदार बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है, बहुत स्वीट सी लड़की है, एंड होपफुली आप लोगों के दिल में जगह बना लेगी, ऐसा किरदार है। मैम, माय नेम इज राजेश आर्य फ्रॉम बड़े बारे में है सुरधारा, सॉरी, और प्रेम बहुत सारे उसके शेड्स हैं, जैसे दोस्ती के भी बारे में है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में है, और जैसे हम जानते हैं कि प्रेम, प्यार, लव आई थिंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स। Why you choose the day Valentine Day for releasing of this film? एक्चुअली सच कहूँ, मैं मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो तुरंत करना चाहती रिलीज, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एक गणित होता है जिसमें हमारा से बहुत सा होता नहीं है, और शायद उन्होंने चुना होगा। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, आजकल तो लोगों के पास वक्त भी उनका देखना पड़ता है ना, कि वो जाके थिएटर्स में देख पाए, तो शायद कुछ ऐसा होगा, इसीलिए। थैंक यू। Now I would request to everyone to please stand up for a group photograph. I would like to request all the dignitaries to please come here so that we can have a group photo. I'm sorry sir, the round is over. After the group photograph, you can have the questions and suppose you want to ask something. I would like to request all the dignitaries to please join for a group photograph. भाई साहब हेलो, तो बैठ जाओ। बोले सर, इंडो वियतनाम को लेकर वियतनाम जो आप हेरिटेज कल्चर फिल्म बनी है, इसके बारे में क्या बनी? हाँ, जो फिल्म है इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भारत और वियतनाम की कल्चर आज से कुछ 100 साल पहले 7th सेंचुरी में सेम ही थी, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कल्चर है, और वो कल्चर हम भूल चुके हैं और वियतनाम में भी भूल चुके हैं। तो वो कल्चर को वापस दिखाने के लिए, उस कल्चर के माध्यम से कुछ यूथ को समझाने के लिए ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें इंडिया और वियतनाम का जो म्यूजिक है उसका फ्यूजन करके लोगों तक एक इंटरेस्टिंग तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज, इसमें इंडिया के कलाकार काम करेंगे, आपने देखा, वियतनाम के कलाकार काम करेंगे, शूटिंग इंडिया में होगी, वियतनाम में होगी। इसमें जो लैंग्वेज का अंतर आएगा, क्या वो हिंदी में होगा या हिंदी में होगा? मूवी तो हिंदी में बन रही है, डब होगा वियतनाम में, वियतनामीज में, जब वियतनाम में जाएगी। एक सवाल आपसे कि इसमें तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसके चांस जमीन पर जब आए थे, तो उसमें भी एक अच्छा किरदार निभाया गया था। समाज में ऐसा कितना जो जो मूवी बनाई है, कितना सराहा जाएगा इसको? ये एक नया डायमेंशन देगा डेफिनेटली, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इस तरह की फिल्म पहले कभी नहीं बनी है, तो मुझे लगता है कि इट विल बी इंस्पिरेशन फॉर द पीपल। इसमें भी एक मेमोरेबल रोल रहेगा गोपी कृष्णन का, एंड आई एम श्योर दैट आप लोग इसे भी पसंद करेंगे, बिकॉज ही इज माई सन इज सो क्यूट एंड वो बहुत प्यारा है, तो आपको हंसाएगा, एंड इट विल बी लाइक एंगनेरिकम रोल है, सरप्राइज। हाँ, एक सरप्राइजिंग रोल रहेगा इसमें। कैसे देखती है बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, जब आपके बेटे पास बच्चा आया, उसके बाद से क्या सोचा था और क्या हुआ? हाँ, ये सच बोलूँ तो इट वॉज अ टफ जर्नी फॉर मी एज अ मदर, बट पहले तो ऐसा लगा था कि इसको
अपने आप खड़ा होने कर दूँ, ऐसा ही बस सेल्फ डिपेंडेंट कर दूँ, ऐसा ही था। फिर जब समझ में आया कि इसको फिल्म का बहुत शौक है, एक्टर बनना है, बचपन से वही ड्रीम रहा है, तो मैंने सोचा एक फिल्म मिल जाए इसको, बस ऐसा। तो मलयालम में एक फिल्म मिल गया उसको, एंड उसके लिए हमें इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्राइज मिला था, पहला एक्टर विद डाउन सिंड्रोम इन कॉमर्शियल मूवी डब्ड बाय हिमसेल्फ, ऐसा एक रिकॉर्ड इसको मिला। उसके बाद दूसरा एंड तीसरा मलयालम फिल्म आ गया, एंड फिर ह्यूज अपॉर्चुनिटी आमिर खान सर की तरफ से आया, एंड अभी ये 5th फिल्म। कुछ भी नहीं कहना है मुझे, बस